Hello students, very good morning. Welcome to my channel Prep EG Chemistry. In this video session we are going to start a new chapter, coordination compound, that coordination chemistry. The branch of chemistry which deals with the special type of compounds known as coordination compound is known as coordination chemistry. Okay, तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे. ये स्पेशल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है. ये बाकी जो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं जैसे सिंपल सॉल्ट NaCl को आप जैसे ही क्या करोगे एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो ये सिंपल सॉल्ट है. डिसॉल्व करोगे क्या देगा, एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, यानी वाटर में आपने डिसॉल्व किया तो यहाँ पे आपको सोडियम आयन मिला, क्लोराइड आयन मिला. ओके, अब आता है एक दूसरा तरह का कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन कंपाउंड. इट इज अ सेकंड टाइप ऑफ कंपाउंड. When two or more salts are mixed in a fixed proportion allowed to crystallize, then a new type of compound is formed which is known as addition compound. Actually here more than two salts are mixed together and crystallize them to form a new type of compound. It is known as actually addition compound or addition salt. Okay, it is of further next two types, the double salt and the coordination compound. That means the addition compound is further divided into double salt and the coordination salt or coordination compound. Okay, अब यहाँ पे देखो डबल सॉल्ट जो है ये थोड़ा सा और स्पेशलाइज्ड है. Those addition compound which are stable in crystalline form, but when they dissolve in solution, aqueous solution, they get dissociated into corresponding ions. For example, here KCl, MgCl and 6H2O, the molecule of water of crystallization is used to crystallize this molecule. But when you dissolve this molecule, the carnallite, then you will get what? Potassium ion, chloride ion and magnesium ion. That means they are completely dissociated, 100% ionized, 100% ionized in where aqueous solution. Okay, अब यहाँ पे इनका 100% आयोनाइजेशन हो रहा है तो इस तरह के सॉल्ट को हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमने दूसरा एग्जांपल लिया है सॉल्ट का, ये आपको एलम है, पोटास एलम. हियर K2SO4, Al2SO4 and Al2SO4 whole thrice dot 24H2O. It is the alum. When you dissolve this molecule also in aqueous solution, you will get what? Potassium ion, sulfate ion and the aluminium ion separately. That means you will easily test these ions in their aqueous solution. But the another class of compounds which are known as coordination compound. These are also the addition compound, but they are different from these double salts. And actually these are the addition compounds which are stable in crystalline form as well as in aqueous form or the aqueous medium also. That means here we have a special type of compound. Here you may see that K4FeCN whole 6. Okay, so when you dissolve this molecule in water, you will get potassium ion with ferrocyanide ion. That means you cannot find the taste of the ferrous ion and the cyanide ion in its aqueous solution. तो अब यहाँ पे ये एक स्पेशलाइजेशन हो गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्टेबल है और एक्वस सॉल्यूशन में भी ये 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है. यहाँ कुछ पार्ट ही आयोनाइज हो रहा है और इस तरह से आप देख सकते हो कि पोटेशियम आयन के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, फेरोसाइनाइड आयन मिल रहा है, ना कि फेरस आयन मिल रहा है, ना कि साइनाइड आयन मिल रहा है. तो अब यहाँ पे ये स्पेशलाइजेशन हो गया कि जैसे ही हम लोग इस स्क्वायर ब्रैकेट में अवेलेबल आयंस को देखते हैं तो उनका आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है. यानी स्क्वायर ब्रैकेट में अवेलेबल क्या है, फेरस है और साइनाइड है, ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं हो रहा है. तो इस तरह के क्लास ऑफ मॉलिक्यूल को, इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं. ये स्पेशल होते हैं. दैट मीन्स दे आर स्टेबल इन their crystal form as well as
they are also stable in the aqueous solution. That means when you dissolve them in aqueous solution, they also stabilize themselves in aqueous solution also. Okay, and so this type of compounds are known as coordination compound, coordination salt. Okay, तो चलो यहां तक नोट करो, फिर हम लोग इनके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और इनके प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं इनसे रिलेटेड, हम लोग उनको देखेंगे. ओके, चलो यहां तक नोट करो. Now another example of the coordination compound. Here it is K3FeCN6. तो अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. जैसे ही हम लोग इनको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, 3K+ देगा और साथ साथ FeCN6 -3 चार्ज देगा. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इनके एक्वस सॉल्यूशन में K+ आयन अवेलेबल है, लेकिन Fe+ आयन नहीं है, साइनाइड आयन नहीं है. यानी कि इनके एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि कंप्लीट डिसोसिएशन, 100% आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो आयन है इन्होंने खुद को रिगेन कर लिया, खुद को रीअरेंज कर लिया. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्चुअली यही होता है कि ये करते क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में फिर से खुद को अरेंज कर लेते हैं और एक स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं. और इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, इन्हें एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देखो Fe पे +3 चार्ज है, तो नेट चार्ज इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पे क्या होगा, आयन पे क्या होगा, -3. तो इस तरह से ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया. ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखो. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी हमारा क्या है, एक कंपाउंड है. इस कंपाउंड में आप देख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट लिया गया और स्क्वायर ब्रैकेट लिया गया यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है. अब आप इसको जैसे ही क्या करोगे, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो ये क्रिस्टल फॉर्म जो है ये भी डिसोसिएट होगा, आयन में टूटेगा. लेकिन यहाँ आपको आयन क्या मिलेगा, तो यहाँ आपको क्लोराइड आयन मिलेगा और यहाँ आपको कोबाल्ट और अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, ना कि आपको यहाँ पे सेपरेट कोबाल्ट +3 आयन. ये अवेलेबल नहीं होगा. आप इसका टेस्ट करेंगे तो आप इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो इस तरह से ये स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जो एक्वस सॉल्यूशन में भी फ्री आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं, अपने आप को, अपने शेप को फिर से अरेंज कर लेते हैं, रिगेन कर लेते हैं और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स आयन में एग्जिस्ट करते हैं. और इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमने ये मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट किया FeCN6 एंड K4. तो अब देखो यहाँ पे अवेलेबल क्या क्या चीज है. तो देखो ये जो है ये आयोनाइजेबल पार्ट है, यानी कि जैसे ही हम लोग इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, K3 टूट रहा है और ये FeCN6 टूट रहा है, यानी कि ये आयन में डिसोसिएट हो रहे हैं. तो आयन में डिसोसिएट हो रहा है, दिस इज नोन एज व्हाट, आयोनाइजेबल पार्ट. सो इट इज आयोनाइजेशन स्फीयर, यानी कि इनका आयोनाइजेशन होता है. ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखो. तो ये पार्ट जो है जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये जब एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा है तो ये आयनाइज नहीं हो रहा है. तो इस पूरे के पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं. ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अवेलेबल क्या है. तो यहां ध्यान से देखो, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन. यानी कि यहाँ पे अवेलेबल है आयरन. आप देख सकते हो कि ये इस स्क्वायर ब्रैकेट में अवेलेबल मेटल है और इसके साथ अटैच क्या है, तो एक निगेटिवली चार्ज, ये न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, एक ऐसा
स्पीसीज हो सकता है जो लोन पेयर डोनेट कर सके। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि ये लोन पेयर डोनेट करता है इस सेंट्रल मेटल आटम और आयन को। ये आपको पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक आयंस होते हैं या फिर न्यूट्रल आयन हो सकते हैं, जिनको ये जो आयंस अवेलेबल हैं या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो क्या करेंगे, इनको लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो जो लोन पेयर डोनर होता है, डोनेट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिगेंड्स। दिस इज नोन एज व्हाट, लिगेंड्स। तो ये क्या हो जाता है, इनको हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स। अब यहां ध्यान से देखो, तो ये जो नंबर है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स या फिर कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड हैं। तो इनको एक्चुअली बोला जाता है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हम लोग आगे सीखेंगे, सारे टर्म्स जो है एक एक करके हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लिगेंड्स क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, सेंट्रल मेटल आटम क्या है, आयनाइजेशन स्फीयर क्या है, आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल पार्ट क्या है। ये सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलो, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के लिए ये 6 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। हो सकता है कि दूसरे जगह पे ये लिगेंड्स चेंज हो जाए, लिगेंड्स का नेचर चेंज हो जाए और फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है किसी दूसरे तरीका से, किसी दूसरे प्रोसेस से हम लोग फाइंड करें। ठीक है, अब देखो ये जो सेंट्रल मेटल आइटम है, इसमें कुछ चार्ज होता है जिसको हम लोग फाइंड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस मॉलिक्यूल को देख करके इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अगर आप फाइंड करोगे तो ये आएगा +2। देखो कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे देख लो पोटेशियम है, तो पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +1 चार्ज होता है। 4 नंबर में है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इनके लिए मान लो कि ये क्या है, तो इनका अननोन है X हो गया। अब देखो साइनाइड Cn-, जो है इस पे माइनस चार्ज होता है। नंबर कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पे ऐड करो 6 × -1। अब देखो इस पूरे के पूरे कंपाउंड पे नेट चार्ज क्या होता है, 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 + x - 6 = 0, दैट इज x - 2 = 0। सो इट इज x = +2। तो यहां से क्या मिल गया हमें, इन पे चार्ज मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे +2 चार्ज लिख देंगे। सिमिलरली हम लोग इनके लिए फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 है के, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। Cn कितना है, 6 है, तो -6 हो जाएगा। दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, -3 आएगा। अब Fe है तो चार्ज चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, +3। तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे 3 क्लोराइड है, तो क्लोराइड यानी -3। अमोनिया है, अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, तो अब यहाँ पे चार्ज इसको पॉजिटिव कर दो, +3। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया इनका ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि सेंट्रल मेटल पे कितना चार्ज अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो यहां तक नोट करो। अब हम लोग एक एक करके इनके टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो नोट करो। आइए हम लोग देखते हैं द नेक्स्ट टर्म, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड हैं। तो यहाँ हमारा सबसे पहला आता है सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। ओके, तो ये पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक आयन हो सकता है या फिर न्यूट्रल मेटल एटम हो सकता है। ठीक है, जो सेंटर में अवेलेबल होगा, यानी कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें एक मेटल अवेलेबल है। ये हो सकता है कि इस पे 0 चार्ज हो, यानी कि एटॉमिक स्टेट में हो, या फिर इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये हो सकता है मेटेलिक आयन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनसे अटैच्ड लिगेंड्स होंगे और ये लिगेंड्स क्या करेंगे, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ प्लस और माइनस चार्ज हो सकता है या फिर 0 चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, एज ए होल, या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ हो क्या रहा है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम जो है ये लिगेंड से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये एक्ट कर रहा है एज लुईस एसिड, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर लुईस एसिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्चुअली जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उनके पास इक्वल एनर्जी के कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं
वो जनरली हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होते हैं और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करते हैं। तो देखो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे CuNH3 होल 6 प्लस 3 चार्ज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे जो लिगेंड है वो न्यूट्रल है, यानी कि इस पे 0 चार्ज होगा, और कोबाल्ट यहाँ पे देखें हम लोग तो इसके पास अब क्या हो जाएगा, +3 चार्ज, यानी कि कोबाल्ट जो है ट्राई पॉजिटिव आयन है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा, आर्गन 18 एंड 3d6, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो इसके पास क्या होगा, 4s वैकेंट और 4p तो वैकेंट होगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखें इनके वैकेंट ऑर्बिटल्स को, तो देखो 3d जो है वो अवेलेबल है 1 2 3 4। अब देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन लिगेंड्स NH3 के कारण ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पेयर में अवेलेबल होंगे। तो अब इनके पास d में कितने वैकेंट ऑर्बिटल बचे हैं, 2 वैकेंट ऑर्बिटल। फिर आ जाओ 4s, ये ऑलरेडी वैकेंट है, 4p यहाँ पे ऑलरेडी 3 ऑर्बिटल जो है ये भी वैकेंट है। अब जो अवेलेबल लिगेंड्स है वो क्या करेगा, तो लिगेंड्स इन वैकेंट ऑर्बिटल में, यहाँ पे लिगेंड्स जो है जैसे अमोनिया NH3, तो NH3 के पास क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट करेगा, यानी कि अब यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया NH3, इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर यहाँ पे NH3 इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर NH3 नेक्स्ट NH3 एंड NH3। तो ये क्या करेंगे, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट कर देंगे, यानी कि ये जो 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में जो लिगेंड्स है वो क्या कर रहे हैं, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा सेंट्रल मेटल एटम ये क्या हो गया, इट इज द मेटल एटम और आयन हैव सेम, नियरली सेम, दैट मीन्स आइदर सेम एनर्जी और नियरली इक्वल एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट द लोन पेयर्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स, यानी कि इनके पास क्या है, इक्वल एनर्जी के वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं जो लोन पेयर को गेन कर सकेंगे। ठीक है, या गेन करते हैं। अब ये तो हमारा सेंट्रल एटम हो गया। नेक्स्ट टर्म क्या आता है, लिगेंड्स। ठीक है, क्या है, लिगेंड्स आर एनी एटम, आयन or molecule having pair of electrons. Here you have to remember the lone pairs of the electrons to donate the central metal atom or ion is called ligand। तो अब हम लोग इनको क्या बोलेंगे कि ये लिगेंड्स हैं, और लिगेंड्स क्या हैं, तो इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, और ये अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, डोनेट करने के लिए अवेलेबल है। देखिए लिगेंड्स क्या हुए, एक्चुअली दे आर द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव अवेलेबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर्स एंड दे कैन डोनेट देयर लोन पेयर्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। Such species are called what, ligands। ओके, तो अब इनके पास अवेलेबल है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें NH3, तो NH3 के पास क्या है, अवेलेबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनिया के पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होता है। दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि FeCl6 -4, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा साइनाइड आयन Cl-, यहाँ पे क्या है, अवेलेबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो क्या करेगा, सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करेगा। तो इस तरह, तो ये जो लिगेंड्स हैं ये अब क्या कर रहे हैं, तो ये लोन पेयर डोनर्स हैं, दैट मींस दे एक्ट एज लिगेंड्स बिहेव एज लुईस बेस। तो लिगेंड्स जो होते हैं लुईस बेस जैसा बिहेवियर शो करते हैं अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। ठीक है, अब चलो इसको नोट करो। तो हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट और बाइडेंटेट
पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट में आता है ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। यानी कि ये जो है अवेलेबल एटम्स है जो क्या करेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देंगे। अगर एक एटम अवेलेबल है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोडेंटेट। अगर 2 एटम्स अवेलेबल हैं तो क्या होगा, डाइडेंटेट। अगर 3 एटम्स अवेलेबल हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेट। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग ये इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। Okay, now the next, the types of the ligands. It is first the monodentate ligands. In case of the monodentate ligand, there are only one donor atom is available. So here you may see that the examples of the monodentate ligands below charge, that is the neutral ligands. These all ligands are neutral ligands because the charge on them are 0. Okay, तो इन पे चार्ज क्या है, नेट चार्ज 0 है, तो हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रल लिगेंड्स की। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे वाटर, अमोनिया, पाइरिडीन। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। These are, but the most important is their name, which is used in IUPAC nomenclature. So here the name is written in terms of के जो नाम लिखे हुए हैं वो जो है वो अकॉर्डिंग टू IUPAC है, तो आपको इनको याद भी रखना होगा, आपको इनको क्या करना होगा, याद रखना होगा। जैसे वाटर के लिए एक्वा, अमोनिया के लिए अमीन, पाइरिडीन के लिए आपको पाइरिडीन PY लिखना है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बोनिल, वैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए नाइट्रोसाइड, एंड फॉस्फीन के लिए फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के लिए ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अकॉर्डिंगली इनके जो नेमिंग है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कि इनमें कुछ निगेटिवली चार्ज भी होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। तो जैसे हम लोग पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स को देखें तो देखो यहाँ पे मोस्टली आता है NO+, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। Here it has one positive charge. Likewise, NO2+ and known as nitronium. Nitronium, the ligand with positive charge. Likewise, it is NH2, NH3+, that means positively charged hydrogenium. So these are the positively charged ligands. Okay. Likewise, तो यहां पे पहले इनको नोट कीजिए। The negatively charged monodentate ligands. It is H- hydrido, O2- oxo, O2- 2-peroxo, O2H-, it is per-hydroxo, then OH- hydroxo, then Cl-, it is also known as chlorido, but here it is chloro or chlorido. Likewise, bromo or bromido, iodine, I-, iodide ion, it is iodido. Likewise, F-, fluoro or fluorido. Okay, it is acetate ion, acetato, cyanide ion, cyano, NC-, isocyano. Actually, it is isocyanide ion, so it is isocyano. Okay, the next N3- nitrido, चेंज है, यहाँ पे N-3 चार्ज है और यहाँ पे N3- चार्ज है। ओके, एजाइडो एंड नाइट्राइडो। ओके, देन इट इज CNO- साइनेटो, साइनेट आयन, देन इट इज आइसोसाइनेट आयन, आइसोसाइनेटो। ओके, नेक्स्ट एमाइड, NH2- एमाइडो, NH-2, it is imido. So these are their names used in their IUPAC naming. Okay. Likewise, for N2 it is dinitrogen, for O2 it is dioxygen. तो ये जो है ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं और फिर इनका यूटिलाइजेशन जो है ये हम लोग जब IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो वहां पे इन्हीं स्पेशल नेम को हम लोग यूज करेंगे। ये नहीं कि हम लोग हाइड्राइड यूज करेंगे। ठीक है, हाइड्राइडो यूज होगा। चलो, तो यहां तक नोट कर लो। ये हो गया एग्जांपल्स ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। अब हम लोग देखेंगे अनदर टाइप्स, दैट इज बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड्स। इसका सेकेंड टाइप डाइडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड्स।
तो देखो यहाँ पे अब सिंपली क्या होगा, यहाँ पे जो अवेलेबल सेंटर्स होंगे यानी कि अवेलेबल एटम्स जो होंगे, 2 एटम्स डोनर होंगे, ठीक है। Here it contains 2 donor atoms, like it is oxalate and here we have the 2 oxygen atoms to donate the pair of electron. Its name is oxalato. Okay, then ethylene CH2 and NH2 and NH2. So here 2 donor atoms are nitrogen, so it is ethylene diamine. Okay, glycinato CH2 COO minus and NH2. This is the glycinato. So these are the examples of what didentate ligands. Okay, अब हम लोग डायरेक्टली देखते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो देखो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में आपको यहाँ पे क्या होगा, या तो 3 सेंटर होगा, 4 सेंटर होगा या फिर 5 सेंटर होगा। तो अगर हमारे पास पहला हो जाए यहाँ पे द फर्स्ट वन ट्राइडेंटेट, दैट मीन्स इट कंटेन्स 3 सेंटर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है डाईइथाइलिन ट्राइएमीन। तो अब आप देख सकते हो CH2 NH CH2। अब देख लो यहाँ पे अवेलेबल NH2 होगा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख रहा है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख रहा है, और एक तीसरा नाइट्रोजन यहाँ पे है NH2, इसके पास भी क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 3 सेंटर्स हो गए, ठीक है। अब आ जाओ द नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल टेट्राडेंटेट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 डोनर एटम्स आर अवेलेबल। तो यहाँ पे 4 अवेलेबल होंगे। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल ट्राइइथाइलिन टेट्राएमीन। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब यहां से देखें हम लोग CH2 NH, again CH2 NH, then here it is NH2 with 1 pair of electron, NH with 1 pair of electron, again it is NH with 1 pair of electron, and again CH2 having NH2 with 1 pair of electrons. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 डोनर नाइट्रोजन एटम्स है, टेट्राडेंटेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक वैसे ही पेंटाडेंटेट होता है और हेक्साडेंटेट होता है, यानी कि जिसमें 5 सेंटर हो और 6 सेंटर हो, ठीक है। तो यहां तक आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग एग्जांपल देखते हैं पेंटाडेंटेट का और हेक्साडेंटेट का। तो देखते हैं पेंटाडेंटेट, और इसका बेस्ट एग्जांपल है इथाइलिन डाइएमीन ट्राइएसीटेट। तो देखो अब इसका एग्जांपल CH2 NH N CH2 C बॉन्ड O बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अब देख लो यहाँ पे एक सेंटर हो गया, फिर यहाँ पे आ जाओ CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस विथ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देख लो आप सेंटर कितने हो गए, 1 CH2 C डबल O माइनस। तो 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर एंड 5 सेंटर। तो यहाँ पे 5 एटम्स हो गए, जिनमें से 2 नाइट्रोजन है
और 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं जो डोनर्स हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ हेक्साडेंटेट। देखो हेक्साडेंटेट का केस क्या होता है, हेक्साडेंटेट में 6 सेंटर हो जाता है और इसका एग्जांपल होता है EDTA-4, इथाइलीन, डाइएमीन, टेट्रा एसीटेट। तो अब यहां पे क्या हो गया, सेंटर 6 हो गए। देखो CH2 नाइट्रोजन 1 सेंटर और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 सेंटर। ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2COO माइनस 1 सेंटर यहाँ पे बनेगा। फिर देखो CH2COO माइनस 1 सेंटर यहाँ पे बन रहा है। फिर ठीक वैसे ही यहाँ पे CH2CO माइनस एंड अगेन इट इज CH2COO ऑक्सीजन माइनस। तो 1 सेंटर यहाँ, 1 सेंटर यहाँ, 3 और 4, 5 और 6, तो यहाँ से 6 सेंटर बन रहे हैं और इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। तो ये एग्जांपल हो जाता है पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां पे क्या होता है, लिगेंड्स हैविंग 2 डोनर सेंटर्स। जैसे हम लोग एग्जांपल है Cn माइनस, तो देखो यहाँ नाइट्रोजन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और कार्बन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लेकिन एट ए टाइम दी ओनली वन एटम डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एम्बीडेंटेट का केस, दैट मीन्स द लिगेंड विच हैव 2 डोनर सेंटर्स but at one time only one atom donate its pair of electron to the central atom. Okay, तो यहाँ पे ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो Cn माइनस NO2 माइनस etc. These are the examples of ambidentate ligands. That means the ligands having the 2 donor atoms but at a time only one atom donate its pair of electron to the central atom. ठीक है, चलो यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। Now the next, deflaxidentate ligand. Actually, ligands which can change their denticity, they are known as flaxidentate ligands. That means they are sometimes acts as monodentate ligand, but sometimes they have 2 donor centers, so sometimes acts as didentate or bidentate also. So here the example SO4 minus 2, it is acts as monodentate as well as didentate. That means in one complex it acts as monodentate and in the other it acts as bidentate ligands. Okay, now the Bris ligands, sometimes the monodentate ligands acts as bidentate ligands and they donate their pair of electron to the 2 separate metal atom, central metal atom. They are known as Bris ligands. For example, it is N2, O2 minus, OH minus, NH2 minus and NH minus 2. These are actually acts as Bris ligands. That means if they have the 2 separate metallic atoms in their complex, then they can donate their pair of electron to the 2 separate metal atoms. Okay, so they forming what, Bris. Now the next, chelating ligands. Okay, अगर आप लोग कभी किंग क्रैब को देखे होंगे तो आप उनका लेग्स देखिएगा, अपेंडेजेस देखिएगा, तो वहां पे उनके 2 अपेंडेजेस जो होते हैं वो स्पेसिफिकली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और वो बाहर की तरह निकले होते हैं। ये एक्चुअली रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, इसी के नाम पे इनको बोला जाता है चिलेटिंग लिगेंड्स। एक्चुअली द लिगेंड्स व्हिच कैन फॉर्म द रिंग बाय डोनेटिंग देयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, कॉपर को जो इथिलीन डाइएमीन है ये अपने दोनों सेंटर से एक ही साथ क्या कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इस तरह से एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि वैसे पॉलीडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड्स एक ही टाइम में अपने जितने भी सेंटर्स है उन सेंटर से क्या करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह के लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं जो अदर पॉइंट्स हैं उनके बारे में।
तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आयनाइजेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो आयनाइजेबल पार्ट होता है, यानी कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है अवेलेबल, उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। वो आयनाइज होता है और आयंस का फॉर्मेशन करता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जितने स्पेसीज स्क्वायर ब्रैकेट में अवेलेबल होते हैं उन सबको एज ए होल हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको आयनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, K4 आयन मिलेगा और इधर से फेरोसाइनाइड आयन मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आयनाइजेशन स्फीयर हो गया। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल मेटल एटम। एक्चुअल में यहाँ पे आप जो लिगेंड्स देख रहे हो, ये लिगेंड्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखो यहाँ पे साइनाइड Cn-। अब देखो Cn- क्या है, मोनोडिटेट लिगेंड है। तो मोनोडिटेट लिगेंड है तो ये कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर में है, 6। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 6 into 1 that is 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखिए हम लोग, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें देखो 4 + 2, ये सब के सब क्या है, मोनोडिटेट लिगेंड्स है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, 4 + 2 एंड इंटू 1, क्योंकि ये क्या करेंगे, सिर्फ एक बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, सिंगल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ भी वैल्यू क्या आएगा, 6। तो इनका भी क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देख सकते हो NH3 कितने नंबर में है, 2 में है। NH3 के पास अवेलेबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो ये सिर्फ एक को डोनेट करेगा और इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 2 into 1 that is the number of ligands, monodentate ligands into its density is equals to 2 and it represents what, coordination number। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो EN लिखा हुआ है। EN इथिलीन डाइएमीन के लिए यूज होता है। अब याद करो, इथाइलिन डाइएमीन CH2 NH2 and NH2 that is it is bidentate ligand। अब कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे देखो 3 into 2 that means it also forms 6 coordinate bonds and so its coordination number is what, 6। तो यहाँ पे हम लोग इनके लिगेंड्स के अकॉर्डिंग, यानी कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर का हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखो यहाँ पे, NiCO4। तो अब देखो CO कार्बोनिल है, ये कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, तो सिंगल मोनोडेंटेट लिगेंड। कितने नंबर में है, 4। तो क्या हो जाएगा, 4 into 1 it is 4, so coordination number is 4। ओके, और एग्जांपल देखो यहाँ पे FeCO5। तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 5। फिर देखो CrCO6। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, सबसे पहले आपको देखना है कि लिगेंड्स हमारा कैसा है। अगर मोनोडेंटेट है तो जितने नंबर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा। अगर डाइडेंटेट है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर ट्राई है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर टेट्राडेंटेट है तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर पेंटाडेंटेट है तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए उनके नंबर्स में। ठीक है, अगर हेक्सा है तो फिर क्या कीजिए, आप उनके नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, तो क्या हो जाएगा, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ आपको ध्यान देना है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, you have to always remember that the mostly 2, 3, 4, 5 and 6, these are the coordination number of the different central atoms during the complex formation। तो ये सबसे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है 4 and 6 these are the most common coordination state, यानी आपको इन सब में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, 4 and 6, यानी कि बाद 2 का नंबर आता है, यानी कि अगर इनके बाद अगर ज्यादा नंबर में मिल रहे हैं तो वो क्या होंगे, 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले होंगे, यानी कि जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उनका नंबर आएगा। 3 और 5 जो है ये रेयर होते हैं, इनके कंपाउंड्स बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक है, जनरली हमें 4, 6 मिलेगा। फिर उसके बाद अगर ज्यादा का नंबर, यानी कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स देखेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो वो आएगा 2 और फिर
ये 3 और 5 तो ये रेयर होते हैं, ये बहुत कम मिलते हैं, इक्का दुक्का आपको मिल जाएगा, एक दो इसके एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कीजिए। तो फिर हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए। ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये चार्ज प्रेजेंट ऑन दी सेंट्रल मेटल आटम। जैसे यहाँ पे देखें हम लोग K4 FeCN6। तो अब यहाँ पे ये जो सेंट्रल मेटल आइटम है इस पे चार्ज क्या अवेलेबल है ये फाइंड करना, ये एक्चुअली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ से हम लोग देखें तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसको। पोटेशियम कितने हैं, 4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4+। साइनाइड कितने हैं, 6 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 इंटू 6, तो ये हो जाएगा -6। अब दोनों को ऐड कर दो तो नेट क्या आएगा -2, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा इसका ठीक अपोजिट, दैट इज +2। ठीक है, फिर देखो दूसरा एग्जांपल, अगर हम लोग देखें NiCO4। अब यहां ध्यान से देखो निकेल है और इसके साथ कार्बोनिल है, कार्बोनिल दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, चार्ज ऑन इट 4 × 0, क्योंकि ये क्या है न्यूट्रल है, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा 0 और 0 चार्ज होगा तो ये क्या हो जाएगा 0। अब इस पे चार्ज क्या होगा तो इस पे भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ मॉलिक्यूल को देखना है और मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है। दूसरा एग्जांपल देखिए, CuNH3 4+2। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखो सेंट्रल एटम क्या है, कॉपर है, यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया पे चार्ज कितना 0, 4 × 0 क्या हो गया नेट 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो नेट चार्ज क्या है +2 है, यानी कि इस पे चार्ज क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो आपको सिंपल इस मॉलिक्यूल को देखना है और इसके अकॉर्डिंग इस पे चार्ज शो करना है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो CuNH3 4Cl2Cl। अब यहाँ पे कोबाल्ट पे चार्ज फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे अमोनिया चार्ज कितना 4 × 0 0। क्लोरीन, तो क्लोरीन क्लोराइड में होता है यानी कि 2 × -1 इस पे चार्ज कितना -2 -1, दोनों को ऐड करो -3, इसको पॉजिटिव करो तो ये क्या हो जाएगा +3। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं किसपे, सेंट्रल मेटल आटम पे। और ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। चलो नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर्स, एल्फ्रेड वर्नर्स ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा CuNH3 फिर आप नेक्स्ट देखिए CuNH3 और एक है CuNH3 अब आप यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों पे देखो सेंट्रल एटम जो है इस पे चार्ज क्या है +3। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो तो देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। इसने क्या किया, इनको ट्रीट किया किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, AgNO3 के साथ। तो देखो जब AgNO3 के साथ ट्रीट किया तो देखो यहाँ पे उन्होंने देखा कि 3AgCl जो है वो डिपोजिट हो रहा है। इस वाले केस में देखा तो सिंगल मोल ऑफ AgCl डिपोजिट हो रहा है। और यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया कि कंपाउंड तो एक ही तरह के दिख रहा है, लेकिन जब हम लोग AgNO3 सॉल्यूशन के साथ इस मॉलिक्यूल को ट्रीट कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल जो है AgNO3 सॉल्यूशन में अलग अलग नंबर ऑफ प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रिसिपिटेट जो है देखो फर्स्ट वाले में कितना है 3 है, सेकंड वाले में सिंगल है और थर्ड वाले में 2 मोल है। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रिसिपिटेट आया वो डिफरेंट आया।
तो इसके बेसिस पे एक्चुअली वर्नर्स ने डिफाइन किया कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है उसमें जो अवेलेबल सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास दो तरह की वैलेंसी होती है। पहला बोला जाता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा बोला जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि इस सेंट्रल मेटल एटम पे नेट चार्ज कितना है ये होता है इसका प्राइमरी वैलेंसी, which is satisfied by the number of oppositely charged negative ion, यानी इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है ये सेटिस्फाई होगा इस निगेटिवली चार्ज आयंस के थ्रू। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब यहां पे कहता है कि दी सेकेंडरी वैलेंसी इज एक्चुअली द कोऑर्डिनेशन नंबर and it is actually satisfied by the number of the lone pair, that is the number of lone pair donated by the ligands। तो यहाँ पे देखो 6 नंबर ऑफ लिगेंड्स है, यहाँ पे 4 + 2 फिर से 6 हो गया, फिर यहाँ पे देखो 5 + 1 फिर से 6 हो गया। लेकिन आयनाइजेबल वैलेंसी देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे 2 है। तो ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो मॉलिक्यूल्स का सेटिस्फाई होता है थ्रू द लिगेंड्स, और लिगेंड्स जो है वो एक्चुअली एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहां तक नोट करो। तो ठीक है, चलो यहां तक नोट करो। Now the next, the postulation of the Warner's theory। वर्नर्स ने पोस्टुलेशन दिया कि कैसे हम लोग किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है अरेंजमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी लिंकेज नोन एज प्राइमरी और सेकेंडरी। The primary valencies are the normally ionizable and fulfilled by the oppositely charged, that is the negative ions। तो अब यहाँ पे पहला कंडीशन क्या हो गया कि यहाँ पे वैलेंसी जो है वो 2 तरह का है। कौन कौन सा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यानी कि जब लिंकिंग हो रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में तो 2 तरह का लिंकेज हो रहा है, पहला हो रहा है प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी जो है ये इसका नॉर्मल आयनाइजेबल वैलेंसी है, यानी कि आसानी से ये क्या हो जाता है, आयनाइज होते हैं, और साथ साथ ये क्या होता है, तो ये सेटिस्फाई होता है ऑपोजिटली चार्ज दैट इज नेगेटिव आयन से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। यहाँ ध्यान देना है कि जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर का वो आयनाइज्ड नहीं हो रहा था। ठीक है, एंड आर सेटिस्फाइड बाय द मॉलिक्यूल्स आयंस, दैट मीन्स दी लिगेंड्स, जिनको हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। लिगेंड्स से क्या करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, और इनको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ दी सेकेंडरी वैलेंसी इज एक्चुअली नोन एज व्हाट, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट, द स्पेसिस दैट इज द लिगेंड्स बॉन्डेड टू द सेकेंडरी वैलेंसी लिंकेज टू द मेटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट। यानी कि जितने भी लिगेंड्स है उनका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट है, वो खुद को उस सेंट्रल मेटल एटम के स्पेस में खुद को अरेंज करते हैं, जिससे इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोगों ने देखा FeCN6 के केस में, यहाँ पे आप देख सकते हो Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस। तो इस तरह से ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, ऑक्टाहेड्रली प्लेस्ड होकर के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो आयंस हैं अपोजिटली चार्ज, ये जो आयंस है लिगेंड्स के आयंस जो है ये खुद को अरेंज कर रहे हैं स्पेस अराउंड दी सेंट्रल एटम। तो इस तरह से वार्नर ने ये दिया कि हम लोग कैसे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन में इतना ही, आप यहां तक नोट कर लो। फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, तो चलो यहां तक नोट कर लो। थैंक यू।